Okay. Recording in progress. Okay. Okay. So, how was your test? Mom, it was pretty good, mom. Pretty easy, I guess. Okay. So don't be expecting from my side now that next test will be easy. Okay. No, First mom, I test was expected to be easy. harder. First test was easy so that like you can relate to the topic कि कितना समझ आया कितना नहीं आया. And it's like test easy hard नहीं होता. If you know the answer then it will turn to be easy. Correct? Okay. So we'll discuss the question first regarding the test, then we'll start with the topic. Okay. And then we'll be discussing the DPPs also according to the topic. Okay. So you have Mom, your DPPs तो हमने सारी कर ली थी, I सारी guess. कहाँ की अभी फोर्थ एंड फिफ्थ इज रिमेनिंग ना वो टॉपिक Mom, but हमने for that now you have to teach me that हाँ nuclear. फोर्थ एंड फिफ्थ टॉपिक हमने भी पढ़ा नहीं है मैंने वही बोला कि हम जब टॉपिक पढ़ लेंगे देन विल डिस्कस दी फोर्थ एंड फिफ्थ डीपीपी ओके Okay. चलो सो विल डिस्कस द क्वेश्चन किसी क्वेश्चन में डाउट था टेस्ट पेपर में Mom, अभी याद ही नहीं मुझे. यू डोंट हैव द टेस्ट पेपर I have the test paper, but I don't remember like कौन सा Okay, question chalo. you. I'll be reading the question from here then. Okay. So the first question was cell membrane is okay. और आपको जो समझ में नहीं आया था मैंने मैसेज ड्रॉप किया था. So my message was कि हमेशा आप क्या करोगे आज से स्पेसिफिकली इन बायोलॉजी क्योंकि बायोलॉजी इज मोर अबाउट दी सब्जेक्टिव ओके तो आप क्या करोगे कि जो भी टेस्ट में आपको एमसीक्यू का भी फ्रेम कर दूंगी ना आप हर क्वेश्चन का जैसे आई हैड गिवन यू 20 क्वेश्चन हियर ओके सो हर क्वेश्चन के अंदर आप एक 1 या 2 लाइन एक्सप्लेनेशन लिखोगे कहने का मतलब लाइक वी हैड द फर्स्ट क्वेश्चन दैट सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ क्या आंसर आएगा Mom, A, protein, lipids, and carbohydrates. correct so what one line like you can say sentence you can frame to support your answer frame a sentence to support your Okay. answer Mom, cell membrane is basically made up of lipoproteins, and I guess it needs carbohydrates to, provide it with energy. शायद से. No, that's why I wanted you to write these answers. Okay, so you know how to frame the language. So when it comes to cell membrane is made up of protein, lipids and carbohydrates. What can be a line to prove this thing? तो आपको लिखना होगा कि when it comes about the cell membrane or when we study the structure of the cell membrane under the microscope, we can observe that the cell membrane is made up of lipid bilayer where we can see the protein embedded in the lipid bilayer as well as some amount of carbohydrate are also found. Now you got the Ma'am, answer? so basically, ma'am, I just need to detail my answer. Like cell Correct. membrane is made up of हाँ protein, lipids, and carbohydrates, but बस कुछ ज़्यादा थोड़ा बढ़ा के हाँ लिखना है, बट मैंने right? क्या बोला लैंग्वेज मैंने बोला एक अच्छा लैंग्वेज लिखना है ना सब्जेक्टिव के लिए तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे जब हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी करते हैं तब हमें पता लगा ये सवाल आया ना अगर आप बोल रहे हो देवाशीष कि सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई है आपको कैसे पता लगा ये बताओ चलो मैम बुक में लिखा था, I guess. ये लिख कर आओगे मैम बिकॉज दिस वॉज रिटन इन माई मैम but बुक I guess मैम इन क्वेश्चन में रीजनिंग तो कहाँ से आ गया अगर वो बना इस चीज का तो बना है मैम व्हाट रीजनिंग डू यू do नीड you इन know मैथ्स these type of questions comes in the examination justify justification type justify the statement have you seen such type of questions yes or a no मैम justify what this word but मैम justify the अगर ये statement write a sentence in the support of your answer like we were talking about the assertion and reason now remember so if I'll give you this line as an assertion devashish that cell membrane is made up of protein lipids and carbohydrates so it will be true or false correct true or not true मैम yes मैम सही है असर्शन करेक्ट होगा ना कि जो हाँ लिपिड जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई होती है रीजन क्या लिखा हुआ होगा नीचे नहीं हो सकता कि असर्शन फ्रेम ये हो सकता है असर्शन तो कुछ भी फ्रेम हो सकता है तो रीजन क्या लिखा हुआ होगा नीचे मुझे ये बताओ जरा Okay, ma'am. So cell mem in when we delve into the structure of a cell membrane by using a what is माइक्रोस्कोप it microscope, we observe that it is made up of it is embedded by lipids, and under the made up lipids not we not have not embedded it is made up of lipid bilayer what it is made up of lipid lipid bilayer bilayer. along with protein and carbohydrate
ओनली वन Yes. लाइन, नॉट मोर देन दैट. ओके, कि जब हमने सिंपल पे, अगर आप माइक्रोस्कोप भी लिखना नहीं चाहो, डायरेक्टली नीचे रीजन में हो सकता है दैट व्हेन वी स्टडी द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वी कैन ऑब्जर्व द लिपिड बाइलेयर अलोंग विद कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन. ओनली दिस. Right. So I want you to write these lines so that in your school examination it will be beneficial for you. Okay. So yeah, correct answer that is. Next one. Okay, most abundant organelle of the cell are. मैम दिस वन आई वाज अ बिट कंफ्यूज बट फिर मैंने बाद में सोचा कि राइबोसोम्स ही हो गया. हाँ, that's correct answer. Why? मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि it is Ma'am, found in both because prokaryote ma'am, and eukaryote. according to me, Golgi body can't be there because it mostly transforms into like lysosomes वगैरह. Hmm. And for like plastids, I don't think कि इतने होने चाहिए. हाँ, स्टिल ना, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं ईआर के सरफेस पर, तो अ नंबर ऑफ और न्यूमरस राइबोसोम्स विल बी देयर. एक बात और याद रखना, हम लास्ट क्लास से बात कर रहे थे, मैंने बात बताई नहीं थी आपको बिकॉज इट इज नॉट लाइक 11 में हम पढ़ाते हैं, बट स्टिल इफ यू वांट टू नो, जब हम बात करते हैं ना ईआर की सरफेस की, ईआर की सरफेस के ऊपर न्यूमरस राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, और ये न्यूमरस राइबोसोम यहाँ पे चेन की फॉर्म में होते हैं. इस चेन को देवाशीष पॉलीराइबोसोम कहा जाता है या फिर पॉलीजोम. अगर बनाना है इसको बना लो प्लीज अपने नोट्स में. लिखा था लास्ट क्लास में अपन ने राइबोसोम में टॉपिक पढ़ा है ना. हाँ हाँ. हाँ, वहीं पर ही. इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? बना चेन ऑफ राइबोसोम्स आर अटैच्ड ऑन द ईआर, इट इज नोन एज पॉलीराइबोसोम और पॉलीजोम. Wait a minute, ma'am. So एक second, I'll draw the structure पहले. Ma'am, but ये तो leaf जैसा नहीं है, I guess. किसकी बोल रहे हो? हाँ, जी इधर diagram. इधर ये कुछ ऐसा देखो, आपको स्ट्रक्चर समझना है. इधर देखो, ये ऊपर एक यूनिट होती है, एक और यूनिट ऐसे नीचे आके जुड़ती है. कल हमने याद है एक डीपीपी में एक डायग्राम देखा था, है ना. तो एक्चुअली होता क्या है देवाशीष, अगर मैं आपको बोलूं ना कि 70s टाइप का राइबोसोम है, तो 70s टाइप के राइबोसोम का मतलब होता है कि वो बना हुआ है दो छोटी यूनिट से, एक 30s और एक 50s से. कौन से मिलकर बना है देवाशीष? 30 और 50 है. हाँ, 70s वाला. अगर यही बात पूछी जाए किसके लिए, 80s वाले के लिए, तो 80s मिलकर बना हुआ है 40 प्लस 60s से. ठीक है. अब ये जो राइबोसोम है ये थ्रेड के ऊपर जुड़ता है. इस थ्रेड को एमआरएनए कहा जाता है. क्या कहा जाता है? मैसेंजर आरएनए. फुल फॉर्म है एमआरएनए का, मैसेंजर आरएनए. तो ये राइबोसोम की हो जाती है स्मॉल यूनिट, और ये वाली हो जाती है लार्ज यूनिट. मैम it प्रोकैरियोट्स में होते हैं ना 70s, I guess. हाँ, आपने लिख रखा है ना ये बात. हाँ हाँ, आपने प्रॉपर हाँ, एक वो वहीं बनवाया पर था. नीचे डायग्राम बना लेना. बना दिया मैम. ओके. मैम तो इसको मैं पॉलीराइबोसोम्स लिखूं फिर, किसको? इसको डायग्राम. हाँ, यहाँ ये नीचे वाली चेन की बात कर रही हूँ, है ना. ऊपर ऊपर तो मैंने सिंगल बनाया है. ठीक है. राइट. और मैम माइटोकॉन्ड्रिया मुझे वैसी सेल में जब भी मैं देखता हूँ मुझे कम ही दिखता है, तो ये हो नहीं सकता. हाँ, जितना उसका रिक्वायरमेंट होगा ना उतना ही होगा. वो जरूरत से ज्यादा की अवेलेबिलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती वहाँ पे. बिल्कुल सही बात है. मैम बट मुझे सेल में दिखता नहीं है ये लाइक माइटोकॉन्ड्रिया इतना, तो आई थॉट कि सही ही आपने है. कब देखा सेल को? मैम लाइक वो डायग्राम्स जब भी लाइक टीचर्स ड्रॉ करवाती तो हाँ. उसमें. बट एक बात याद रखना, मैं पढ़ाऊंगी ना माइटोकॉन्ड्रिया तब आपको बताऊंगी. नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सेल. मैम एक सेकंड बस मैं लिख हाँ. के. Yes ma'am. Ma'am, so for third का मेरा था the shape and size of cell are related to the functions of the cell. परफेक्टली करेक्ट. ओके, नेक्स्ट वन है हमारे पास, द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड सेल डिस्क्राइब सेल एज मेनी लिटिल बॉक्सेस. मैम आई गेस ये तो रॉबर्ट हुक है शायद से. करेक्ट है ना. हमने बात की थी ना, उन्होंने स्ट्रक्चर को किससे कंपेयर किया था देवाशीष? हाँ, हाँ रॉबर्ट हुक ने सेल के स्ट्रक्चर को किससे कंपेयर किया था? मैम चर्च के उससे. नहीं हनीकॉम कुछ हनीकॉम ऐसा. से, है ना. ओके, नेक्स्ट वन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल?
मुझे याद है ये वायरस, आपने डीपी पे भी मुझे करेक्ट कराया था। नेक्स्ट, प्लांट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय, Presence of cell wall, vacuole, and absence of centriole or centrosome. करेक्ट। अ प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट पोजेस, क्या नहीं होता इनमें से? A nuclear membrane, करेक्ट। द लार्ज सेल इज दैट ऑफ, ostrich egg, सेल थ्योरी वाज गिवन बाय, or Schleiden and Schwann. okay, lysosomes is formed from which of these following cell organelles? Golgi bodies, Double membrane is absent in, chloroplast. double membrane is absent in, मैम क्लोरोप्लास्ट में ही होती है आई गेस। okay, फ्लो चार्ट देखो, फिर से खोलो। सेल ऑर्गेनल स्टार्ट किए थे, उसके पहले आई हैव मेड यू राइट सिंगल मेम्ब्रेन, नॉन मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, एंड लेट मी नो कि क्लोरोप्लास्ट में वहाँ प्लास्टिड लिखा है, अब बार बार इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, वहाँ लिख लो जहाँ प्लास्टिड लिखा है, प्लास्टिड, प्लास्टिड भी तो पढ़ा होगा, क्लोरोप्लास्ट इज द टाइप ऑफ प्लास्टिड ना। अच्छा हाँ, आपने प्लास्टिड लिखवाया मुझसे। हाँ, वहाँ लिख लो अगर आपको कंफ्यूजन है तो, प्लास्टिड के आगे। नहीं याद ही पढ़ा वाला था तेरा 3 टाइप ऑफ प्लास्टिड्स लास्ट ईयर? हाँ मैम, याद नहीं मैम अच्छे से। ठीक है, तो अब याद आया, इसका आंसर क्या आएगा देन? मैम इसका फिर लाइसोसोम आ जाएगा। हाँ, करेक्ट। यार Okay. एक अलग निकल गया। Next, the main area for various type of activities in the cell is, साइटोप्लाज्म, cell wall of plant is chiefly composed of, सेल्यूलोज, which part of the cell contain organelles, साइटोप्लाज्म, which structure act as a barrier between the cell and its surrounding, सेल मेम्ब्रेन, vacuole is up, vacuole in a plant cell, it is membrane bound and contains water and excretory substances. uh, आपने मुझे क्लास में बताया था एक्सक्रीटरी वाला। हाँ हाँ हाँ, मैं नेक्स्ट पढ़ रही हूँ। The plasma membrane consists mainly of, मैम देखो ये वाला मुझे आया नहीं था, बट मैंने थोड़ा बहुत दिमाग हाँ लगा के बताओ, मैंने करा है, तो ए है इसका आंसर मेरे हिसाब से। फॉस्फोलिपिड एम्बेडेड इन अ प्रोटीन लेयर, लेयर किसकी होती है, बाइलेयर किसकी होती है, प्रोटीन की? फॉस्फोलिपिड्स। तो फिर आपको तो आना आता है ये वाला, मैम तो फिर मुझे आंसर उस क्या आएगा? प्रोटीन से एक सेकंड मैम, हाँ, प्रोटीन एम्बेडेड इन अ डी। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन एम्बेडेड। ऐसे बनाई नहीं थी अपन ने, इधर देखो, कि इस तरह से बहुत सारे लिपिड्स के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, और इसी वजह से लिपिड क्या बनाती है, लिपिड बाइलेयर बनाती है। इधर इस बाइलेयर में बीच बीच में एम्बेडेड क्या मिलेंगे, प्रोटीन, और इवन इट कैन बी कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इन फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या था, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल? अपर लेयर इज पोलर एंड हाइड्रोफोबिक। अपर लेयर अगर पोलर है और तो कैसी होगी, हाइड्रोफोबिक होगी। अच्छा, हाँ, इधर हेड हाइड्रोफोबिक होता है कि हाइड्रोफिलिक होता है? ए हाइड्रो, मैम पानी को प्यार करने वाला कौन होता है? फिलिक। फिलिक। तो फिर आंसर, अच्छा तो अपर लेयर इज नॉन पोलर एंड हाइड्रोफिलिक। अपर लेयर, इसका आंसर आएगा बच्चे, अपर लेयर इस, कहाँ गया, फॉस्फो, इसमें ये दोनों ही गलत है। अपर लेयर इज नॉन पोलर एंड हाइड्रोफिलिक। पोलर का मतलब समझते हो? पहले मुझे एक बात बताओ, नो मैम। पोलर का मतलब होता है, नहीं पढ़ा कभी भी, इट्स अ नो सिंपल मैम। जनरल वर्ड, केमिस्ट्री में भी बोलते हैं, फिजिक्स में भी बहुत ज्यादा पोलर वर्ड बोला जाता है। पोलर मींस जो वाटर के साथ कंबाइन कर सकता हो, बाइंड कर सकता हो, जिसकी भी वाटर बाइंडिंग कैपेसिटी होती है ना, उसको पोलर मॉलिक्यूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पोलर मॉलिक्यूल। हाँ, क्या प्रॉपर्टी होगी, वाटर बाइंडिंग। जैसे फैट्स हो गए, वो पोलर नहीं होंगे क्योंकि वो बाइंड नहीं कर सकते। तो इसका आंसर अपर लेयर इज नॉन पोलर एंड हाइड्रोफिलिक। नहीं, अपर लेयर कैसी होती है देवाशीष, पोलर और हाइड्रोफिलिक होती है। नीचे वाला कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक और नॉन पोलर होता है, ठीक है। तो इसका राइट मैम। आंसर आएगा, अब ये तो छोड़ो, आपको तो सबसे करेक्ट ढूंढना था ना, तो क्या मैंने ये बात नहीं बताई कि फॉस्फोलिपिड फॉर्म्स अ बाइलेयर?
इसमें क्या गलती दिखी आपको देवाशीष? जरा मुझे इतना सा बता दो बस। मैम उस टाइम मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था, मुझे लाइक हाँ, 4 मिनट में पेपर करने की जल्दी जरूर थी और याद नहीं आ रहा था। फॉस्फोलिपिड्स फॉर्म अ बाइलेयर, आपको तो करेक्ट ऑप्शन देखना है ना, और मल्टीपल ऑप्शन तो करेक्ट हो नहीं सकते, मैंने ऐसा लिखा ही नहीं है ऊपर कि मोर देन वन आंसर कैन बी करेक्ट हियर। तो आपको तो उस पर पढ़ना ही नहीं था, अपर पार्ट और लोअर पार्ट में आप लोग डायरेक्ट देखते हैं कि मैंने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर, बाइलेयर जो लिपिड्स की बाइलेयर होती है वो फॉस्फोलिपिड्स की बनती है, तो बस वो करेक्ट है, इसका थर्ड आंसर आएगा। ठीक है, यस। और अगर आपको लिखना हो तो आपने सेल मेम्ब्रेन जहां पे बनाई है वहां पर ये लिख लेना, नॉन पोलर और पोलर वाली बात। चलो अगला बताओ, विच ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। करेक्ट, इसका मतलब समझे ना कि ये बोलना नहीं चाह रहे कि प्रोटीन कौन बनाता है, वो ये बोलना चाह रहे हैं कि कौन उसमें पार्टिसिपेट करता है, तो ऑप्शन के हिसाब से जाना, ये नहीं अरे मैम क्वेश्चन गलत हो गया, इसमें राइबोसोम तो है ही नहीं, तो ईआर तो है। ठीक है, अगला, यस। मेम्ब्रेन इज बैग विद हाइड्रोलाइटिक एंजाइम व्हिच इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल इज? लाइसोसोम। करेक्ट, कितने गलत हुए 3। टोटल? एस, तो अब आपको ये समरी ऑफ द स्टोरी दो बातें पता लगेंगी, एक तो सही से पेपर को रीड करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। इफ इट्स प्रोवाइडेड 45 मिनट्स टू यू, तो ऐसा नहीं बोल रहे कि 45 मिनट्स तक बैठना ही है, पॉइंट इज कि टेक योर टाइम, एक बार रीड अच्छे से करो और उसके बाद आंसर करो। ठीक है, आपके फुल आउट ऑफ फुल आ सकते थे अगर 3 गलत नहीं होते तो। नेक्स्ट टर्म, और नेक्स्ट बात याद रखनी है कि आपको कुछ कुछ पॉइंट जो मैंने नोट्स में लिखवाए हैं ना उन्हें रिवाइज करना है। ठीक है, राइट बट मैम। स्टिल गुड, अच्छा है। फर्स्ट टाइम अगर बात की जाए पहला टेस्ट था, सो इट मेड मी हैप्पी कि आपने बहुत कुछ सही अटेम्प्ट किया है, गुड। राइट। ओके, यू विल गेट फुल आउट ऑफ फुल इन द नेक्स्ट टेस्ट, वी विल होप सो, बट इट विल बी हार्ड। ओके ओके चलो, सो वी आर डन विद राइबोसोम। अब क्या पढ़ने वाले हैं आगे, जरा मुझे बताओ क्या रह गया अपना? मैम वो न्यूक्लियस वाला रह गया, एक सेकंड बुक ले। हम्म हम्म मैम स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल एंड सेल डिविजन। हाँ, नहीं अभी इसके पहले हमारे पास और भी टॉपिक रह रहे हैं, न्यूक्लियस मैंने कहा मैं आखिरी में पढ़ाऊंगी, तो आज के लिए हमारा जो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे, हेडिंग डालो, दैट विल बी माइटोकॉन्ड्रिया, नोन मैम इससे एज। मेरा एक छोटा सा डाउट है, जब भी मैं एक्सरे के लिए जाता हूँ उसमें लिखता है कि कैंसर हो सकता है एक्सरे से, तो मैम लाइक ऐसा क्या होता है बेसिकली उसमें? एक्सरे से, ओके, हाँ। सिंपल सुनो, इधर देखो, अब आप सेल टॉपिक पढ़ रहे हो ना, इट इज कनेक्टेड टू सेल ओनली, इधर पेन डाउन देखो, फिर समझ में नहीं आएगा। ओके, तो अब जब किसी सेल की बात करते हैं ना, तो इन सेल के ऊपर क्या अवेलेबल होते हैं? सेल्स हैव सम रिसेप्टर्स। ओके, जब भी कोई भी बाहर से कहीं से भी कोई चीज आती है ना जिसको सेल में एंट्री चाहिए, वो इन रिसेप्टर को पहले हाई हेलो करती है, जैसे कि घर में बाहर बैठा हुआ गार्ड। ओके, तो पहले गार्ड को अपना एड्रेस वगैरह, आप कहाँ से आए हो, किससे मिलने आए हो, सब कुछ लिखवाना पड़ता है, द रिसेप्टर डू दैट फंक्शन। तो हमारे पास इस तरह के रिसेप्टर सेल पर होते हैं, और अगर ये रिसेप्टर्स पर कोई चीज आकर जुड़ेगी और इन रिसेप्टर्स को क्या कर देगी, वो एक्टिव कर देगी, जिसकी वजह से ये सेल क्या बनाना चालू कर दे, ये सेल ट्यूमर फॉर्म करना चालू कर दे। तो इन चीजों को क्या बोला जाएगा? कार्सिनोजेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है देवाशीष? कार्सिनोजेंस। एक्स-रे इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्सिनोजन, और ये कार्सिनोजन क्या है? कैंसर कॉजिंग मटेरियल। तो कैंसर कॉजिंग मटेरियल को क्या बोलते हैं? कैंसर कॉजिंग मटेरियल को कार्सिनोजेंस बोलते हैं। एक्सरे इज एन एग्जांपल ऑफ कार्सिनोजन। टबैको, स्मोकिंग करते हैं ना, है ना, तो बोलते हैं इट्स इंजीरियस फॉर द हेल्थ, कैंसर हो जाएगा। ये सब कार्सिनोजेंस होते हैं जिनकी वजह से हमें कैंसर हो सकता है। और ये कैंसर कैसे कॉज करते हैं, मैंने आपको सेल से कनेक्ट कर कर बताया। ये रिसेप्टर्स को एक्टिव कर देते हैं जिसकी वजह से वो सेल ट्यूमर बनाना चालू कर देता है। ठीक है, ये तो पता है ना कि सेल में ट्यूमर, कैंसर में ट्यूमर बनना चालू हो जाते हैं। ट्यूमर जानते हो? ग्रुप ऑफ सेल्स बनना चालू हो जाते हैं। ठीक है, मैम हाँ एक और चीज, अब मैम जैसे कि बेसिकली आई गेस मेरे दांत एक वी शेप बनाता है और मैं मुंह से सांस लेता हूँ, पता नहीं क्यों, राइट?
मेरे को समझ नहीं आया, वापस बोलो। मैम तो बेसिकली आई गेस आई हैव, मेरी नाक में आई गेस कोई बोन अलग से लगी हुई है, जिस कारण लाइक यू नो मुझे मुंह से सांस लेनी पड़ती है। कौन सी बॉल लगी हुई है? मैम बोन पता नहीं मैम, कोई डॉक्टर कोई बोन बोन एंड लाइक फिलेंट्रॉफी वगैरह कुछ कह रहा था, आई डोंट रिमेम्बर। अच्छा ओके, अब मैं समझ गई क्या बोलना चाह हाँ रहे तो हो। बेसिकली उसने लाइक एक नेजल स्प्रे टाइप दिया है, तो मैम बेसिकली लाइक की है वो स्प्रे, राइट? हम्म 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 तो मैम, तो पहले मैं लाइक एक सेकंड, तो मैम पहले इससे तो मुझे कुछ फील नहीं होता, दूसरी वाली दवाई डालता उससे भी मुझे फील नहीं होता, तो लाइक बेसिकली हो क्या है? तो ये दवाइयाँ फील करवाने के लिए थोड़ी ना होती हैं, दवाइयाँ तो इसलिए होती हैं कि आपको जो प्रॉब्लम है वो सही हो जाए। अब अगर हम बात करते हैं, कई बार क्या होता है ना, हमारी बॉडी का जो स्केलेटल सिस्टम है पूरा, वो बोन्स और कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो हम जब नोज की बात करते हैं, जो फ्लेक्सिबल पार्ट है, दिस इज जो बहुत फ्लेक्सिबल होता है ना, लाइक ईयर पिन्ना की बात करें, नोज की बात करें, दीज आर नॉट बोन देवाशीष, ये कार्टिलेज है। जो यस सॉफ्ट और मूवेबल है, या फिर यूँ बात करो ना, थिन होती हैं, ये सब किस में आती है? कार्टिलेज में। बट स्टिल वी हैव द इनर बोन्स, बोन्स अवेलेबल होती है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में, और वो बोन कई बार इलोंगेट हो जाती है। उनके इलोंगेट होने की वजह से जो हमारा नेसल पैसेज है ना, वहां पर वो बैरियर की तरह काम करती है, तो ऑक्सीजन का जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो पाता। तो डॉक्टर ने आपको ये नेजल स्प्रे क्यों दी है? आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक ओपन करने के लिए, समझे? आपका मैम, ब्रीदिंग। वो तो कह रहा था मैम कुछ इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन किसी का कम करने के लिए। हाँ, तो बात वही, वो बात सेम होती है। कहने का मतलब आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक अगर ओपन हो जाएगा, कहने का मतलब इन्फ्लामेशन कम हो जाएगा। इन्फ्लामेशन समझते हो? इन्फ्लामेशन का मतलब है कि वो नॉर्मल से खटकर कुछ और काम कर रहा है। जैसे फीवर, फीवर इज ऑल्सो एन इन्फ्लामेशन ऑफ द बॉडी। तो हमारी बॉडी का जो रिस्पॉन्स होता है ना, उसको हम इन्फ्लामेशन टर्म देते हैं, ठीक है। चलो अब जनरल नॉलेज छोड़कर ये पढ़ना स्टार्ट करें। हेडिंग डाला आपने माइटोकॉन्ड्रिया। यस मैम। सो व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है? ऑल्सो नोन एज, पावर हाउस ऑफ द सेल। known as पावर हाउस ऑफ सेल। द क्यों सेल। पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं इसको? क्या काम करता है ये? मैम एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। हाँ, synthesizes ATP, that is adenosine triphosphate, जिसे क्या बोला जाता है? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ओके, चलो स्ट्रक्चर की बात करें। स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका। दुनिया, अगर मैं खिचड़ी भी खा तो तुझे खानी है? स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन के सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, ये बताओ। डबल मैम। हाँ, इट्स अ डबल पालक पनीर, एक पनीर मेम्ब्रेन मतलब खाती बाउंड है। सेल ऑर्गेनेल। ओके, तो खिचड़ी को अब देनी अगर है डबल ना? मेम्ब्रेन बाउंड है, इसका मतलब दो मेम्ब्रेन होंगी। कौन कौन सी? इट विल बी आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है इनर मेम्ब्रेन। मैम उनका खुद का डीएनए भी तो होता है बस। हाँ, अभी हम सारी बात करेंगे, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं अपन को। अब इसलिए मैंने स्ट्रक्चर से चालू किया है। अब यहाँ पर एक बड़ी ब्यूटीफुल सी बात है जो समझनी है, कि जब हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, तो मैंने बोला डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। अब डबल मेम्ब्रेन के अंदर भी देवाशीष, इसने क्या किया हुआ है अपने आप को, जो इनर मेम्ब्रेन है उसने अपने आप को अंदर की तरफ फोल्ड किया हुआ है। क्या किया हुआ है? इनर मेम्ब्रेन फोल्ड ने क्या खुद हुआ को मैम? फोल्ड किया हुआ है। तो क्या बनाई हुई है इनर मेम्ब्रेन ने? इनर मेम्ब्रेन ने इनफोल्डिंग्स क्रिएट की हुई है। क्या हो रखी है इनर मेम्ब्रेन? इनफोल्डेड हो रखी है। इनफोल्डेड होने से क्या हो रहा है? ये क्या करता है? इंक्रीजेस दी लेना भूल गई ना? मैं भाग के आई तुरंत। सरफेस एरिया। क्या इंक्रीज करता है ये? सरफेस सरफेस एरिया एरिया। इंक्रीज करता है। ठीक है, देखो एक थ्रेड कुछ ऐसे है, एक थ्रेड को हमने थोड़ा सा एक शेप आउट कर दिया, तो मतलब उसने क्या कर दिया?
सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया। तो ये तो हो गई, मैं मार्किंग कर देती हूँ, ये तो हो गई हमारी आउटर और ये हो गई हमारी इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, वी हैव दी, दिख रहा है ना, हाँ, आउटर एंड द इनर मेम्ब्रेन। अभी जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना, इसने जो इनफोल्डिंग्स क्रिएट की है सरफेस इंक्रीज करने को के लिए, इन इनफोल्डिंग्स को नाम दिया जाता है। इन इनफोल्डिंग्स को बोला जाता है क्रिस्टे। क्या बोला जाता है इनफोल्डिंग्स को? इनफोल्डिंग्स का नाम क्या है? इन्हें क्रिस्टे क्रिस्टे। बोला जाता है। इन क्रिस्टे के ऊपर कुछ स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स अवेलेबल होते हैं। क्या अवेलेबल होते हैं इन क्रिस्टेस के ऊपर? ऑलपिन जैसे ना, Small पिन हेड structure. जैसे स्ट्रक्चर्स अवेलेबल होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को पता है क्या बोलते हैं? पहले पढ़ा है? नहीं मैम, I don't remember. इन स्ट्रक्चर्स को, बहुत सारे नाम है इन स्ट्रक्चर्स के, इन पिन जैसे स्ट्रक्चर्स के। इन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है, मैं ऊपर मार्किंग कर देती हूँ, मुझे मजे नहीं आते इस डायग्राम को बनाने में। इन स्ट्रक्चर्स को ऑक्सीजोम्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजोम्स। डॉट्स। अंदर की फ्लूइड मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है, जो फ्लूइड पार्ट होता है? माइटोकॉन्ड्रियलिज्म। माइटोकॉन्ड्रियलिज्म, ये क्या है? इसे मैट्रिक्स बोला जाता है भाई। ये माइटोकॉन्ड्रियलिज्म क्या होता है? दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग मैम सच लेकिन यह वर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया। जो मैंने बनाया है। अच्छा, आपने बनाया। इसे क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते ऑक्सीजन। हैं। मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, यस, हाँ फ्लूइड मैट्रिक्स टेक्निकली। मैं लिख मैम, देती हूँ। मैट्रिक्स मैथ्स के चैप्टर का नाम है मेरा, आई हाँ, गेस। मैट्रिक्स बेसिकली यहाँ पर मतलब है उसका देवाशीष, दैट्स द फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस जो यहाँ पर अवेलेबल होता है, उसको हम मैट्रिक्स कह रहे हैं। मैम, आई वेरी वुड गुड। रादर स्टिक टू माइटोकॉन्ड्रियलिज्म। हाँ, बट नथिंग सच एग्जिस्ट्स। डायग्राम कंप्लीट करो, अब समझ में आया कर दिया कैसा मैम। होता है माइटोकॉन्ड्रिया। डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। इस डबल राइट। मेम्ब्रेन बाउंड में वन इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड द अदर इज द इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन ने खुद को इनफोल्ड किया है सरफेस एरिया इंक्रीज करने के। इन इनफोल्डिंग्स को क्या कहते हैं? इन इनफोल्डिंग्स को सॉरी, क्रिस्टे क्रिस्टल। कहते हैं। ठीक है, इन क्रिस्टे पर जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स अवेलेबल है उन्हें ऑक्सीजोम्स कहते हैं, और अंदर के जो पूरे फ्लूइड पार्ट है उसे मैट्रिक्स बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ओके, नोट किया? यस, डायग्राम बना? कर दिया मैम। ओके, चलो अब इसी में आगे लिखो। सो मैंने क्या बोला? इनर मेम्ब्रेन दिख रहा है ये पेन? ओके, इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स इनफोल्डिंग्स known as cristae. Known as cristae. On cristae, small structures known as oxysomes are present, which carry out aerobic respiration. That is, aerobic respiration होने का मतलब ATP formation. मैम, इनको लंग्स नहीं कह सकते मैम, सेल्स के? क्या 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 वापस बोलो। मैम, इनको लंग्स नहीं कह सकते सेल के? हाँ, कुछ कुछ वैसे ही काम है, बिल्कुल सही है। बट पता है लंग्स क्यों नहीं बोलते? क्योंकि क्यों लंग्स मैम? का काम होता है ब्रीदिंग, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब
एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता देवाशीष। इसका मतलब क्या है टेक्निकली, यहाँ पर एक स्टेप हो रही है। स्टेप इज कलर चेंज प्लीज। स्टेप इज यहाँ पर जब सेल को क्या मिल रहा है देवाशीष, सेल को कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, C6H12O6 मिल रहा है। ये C6H12O6 यहाँ पर किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, ब्रेक होता है। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी प्लस वाटर का फॉर्मेशन। हम इस प्रोसेस की बात कर रहे हैं देवाशीष। ये जो प्रोसेस जो मैंने लिखा है ना, ये किसकी रिएक्शन है, एरोबिक ब्रेकिंग डाउन ऑफ, अच्छा रेस्पिरेशन की। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब ब्रीदिंग नहीं होता, एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब ब्रेक डाउन ऑफ द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। ये कहां पर हो रहा है, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, मैम रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। कहाँ हो रहा है ये देवाशीष, मैम कहाँ हो रहा रेस्पिरेटरी है ये सिस्टम में, कहाँ हो रहा सॉरी, है, माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ हो रहा यस है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया किसके पास होगा, सारे सेल। यूकेरियोट्स के पास। इसका मतलब इट्स नॉट अबाउट ह्यूमंस देवाशीष, इट्स अबाउट ऑल द यूकेरियोट्स। तो जिनके पास भी माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या कर पाएंगे, फूड को ब्रेक कर कर एनर्जी बना पाएंगे। क्लियर हुआ, एक बार वापस से रीड करो। दे ईट खाना, दे ईट खाना, दे ब्रेक खाना, दे डोंट ईट खाना। ओके चलो, ये पहली बात एक सेकेंड मैम, तो बेसिकली हम खाने को और तोड़ते हैं। यस। मैम एक सेकेंड, बिल्कुल मैंने थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में। मैम 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 वेट, नाउ आई एम यूजिंग अ लॉट ऑफ माय ब्रेन राइट। हाँ हाँ। सुनो सुनो हम्म मैम, जब भी मैं खाना खाता हूँ लाइक मेरी मेरी मेनली डाइट प्रोटीन्स की है, क्योंकि मेरी हाइट कम है, तो लाइक मैं मेनली प्रोटीन ही खा रहा हूँ राइट। तो लाइक शुगर कहाँ से आ रही है उसमें फिर? आप पोटैटो नहीं खाते, नहीं मैम, अब बिल्कुल छोड़ नहीं दिया। खाते। और क्या खाते नहीं हो आप, जो भी खाते हो मुझे बताओ, बताऊंगी कार्बोहाइड्रेट कहाँ आ रहा है। दाल, मैम सुबह पल्सेस दूध, पल्सेस पल्सेस एग्स, पल्सेस, पल्सेस मे बी, हाँ पल्सेस, योर मिल्क, हाँ मिल्क ले रहे हो, हाँ कार्बोहाइड्रेट आता है। लैक्टोज शुगर भाई, मैम इज इट जस्ट लैक्टोज लाइक डेयरी वाला प्रोडक्ट? हाँ लैक्टोज शुगर। ओके, आर यू गेटिंग दैट, इट्स अ राइट। कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज। ओके सो अब सुनो, अब मैं तुम एक एग्जांपल देती हूँ, सुनना अभी ढंग से सुनो, मैं डाउट क्लियर करती हूँ, मुझे डाउट तो समझ में आ गया। सुनो इधर, मैंने मिल्क पिया, ठीक है, मिल्क में क्या अवेलेबल थी, लैक्टोज अवेलेबल थी, ठीक है। ये मिल्क कहाँ गया देवाशीष, मतलब ये लैक्टोज कहाँ गई, ये गई मेरे, कहाँ गई, डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब डाइजेस्टिव मैम सिस्टम कहाँ एक्चुअली से मैं चालू होता नॉर्मल है, दूध नहीं पीता। मैम एक्चुअली मैं नॉर्मल दूध नहीं पीता, मैं वो आलमंड वाला दूध पीता हूँ। आप कुछ भी पी रहे हो, नेचुरल शुगर इज देयर, ठीक। कोई भी मिल्क की बात करते हैं, फिर इवन ड्रिंकिंग दी आलमंड मिल्क, अमाउंट ऑफ शुगर इज देयर, ओके। मैम व्हाट एंड इफ इवन पीपल आर इवन इवन लैक्टोज इवन इवन इंटॉलरेंट? आप कोई भी फ्रूट खा रहे हो, एप्पल, एनी फ्रूट, फ्रूट के थ्रू बनाना। स्वीट शुगर इज गोइंग इन योर बॉडी, ओके। चलो, तो माउथ से होता हुआ ये कहाँ पहुंच जाएगा, माउथ से होता हुआ ये पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। और माउथ से होता हुआ जब लैक्टोज यहाँ पहुंचेगा ना, तो लैक्टोज नहीं रहेगा देवाशीष, लैक्टोज को ब्रेक कर चुके होंगे अब, और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या बन चुका होगा उसका सिंपलेस्ट सिंपल फॉर्म, जैसे कि ग्लूकोज। पहले देखो सही से, ये समझ में आ रहा है, इधर उधर कहीं ना कहीं लग रहे हो, कुछ में तो लग रहे हो, क्या कर रहे हो, हाँ कुछ नहीं मैम, स्प्रे मेरा गिर गया था उसको उठा रहा हूँ। इधर ध्यान दो, इधर देखो, ये कुछ क्लियर हुआ, मैंने लिखा कि मिल्क हमने पिया, आलमंड मिल्क, सॉरी। मैम व्हाट इफ मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ मैम? हाँ कोई बात नहीं, तो लैक्टोज ना जाके, अगर मैंने आपको बोला कि आप फ्रूट्स लेते हो, फ्रूट्स खाते हो, एप्पल खाते हो, मैम ओनली बनाना ना। बनाना ना, ठीक है, फ्रक्टोज आता है आपकी बॉडी में उससे, इट इज ऑल्सो अ शुगर। मैं व्हाट इफ मैं खाना ही ना खाऊं फिर? अगर आप खाना नहीं खा रहे हो देन तो फिर सेल्स काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर तो आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं बन पाएगी, और एनर्जी नहीं बन पाएगी तो फिर आपका बॉडी काम कर पाएगा,
वीक वीक फील होना चालू हो जाएगा। एक दिन बिना खाने के रहो देवाशीष, पता लग जाएगा कि बिना खाने के हम रह सकते हैं क्या, वी कांट सर्वाइव। अब सुनो, राइट ये ग्लूकोज मिला यहाँ पर, ये ग्लूकोज कहाँ पे पहुंचाया जाएगा, ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, और सेल में जाकर क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे ताकि क्या हो सके, एनर्जी का फॉर्मेशन हो सके। अब क्लियर हुआ? अभी भी डाउट हो तो पूछ लो। मैम बट अगर अब ये पानी भी रिलीज करता है तो ये वाला पानी जाता कहाँ है फिर? हमारी बॉडी में, हमारा 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर देवाशीष। बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, सेल एब्जॉर्ब करेंगे, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट Mom, but in बनाएंगे। physics, so we say that 0% of our body is made up of anything. क्या A है, जीरो body is परसेंट hollow. ऑफ आवर, वापस बोलो, 0% ऑफ मैम आवर। कुछ hollow था मैम. It is like hollow. ना, ऐसा नहीं है। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सो मेनी थिंग्स। हमारी बॉडी आयंस की बनी हुई है, मिनरल्स की बनी हुई है, हमारी बॉडी में वेरियस टाइप ऑफ विटामिन्स मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलती हैं, अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं एंड वाटर मिलता है। हमारे बॉडी में ब्लड है? नहीं है, बोल दो। मैम नहीं है मैम, पानी जैसा कुछ है, लाल लाल जो पानी. ब्लड है ना, ब्लड में क्या होता है, ब्लड में प्लाज्मा होता है, एंड प्लाज्मा अगेन हैव द मैक्सिमम कंपोजिशन ऑफ वाटर, वाटर का बना हुआ होता है। चलो, कम अगेन टू द टॉपिक नाउ देवाशीष, इधर देखो। Right. इधर तो यहाँ पर क्या हुआ, अच्छा अभी के लिए क्या याद रखोगे, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में, में दो मेम्ब्रेन होती है, ओहो, एक आउटर एक इनर. इनर को इनर इनफोल्डिंग्स होती है, इनफोल्डिंग्स को क्रिस्टे कहते हैं. क्रिस्टे पे वी फाइंड ऑक्सीमोरॉन्स जैसे थिंग्स. और फिर जो इनर वो होती है दैट इज मेड अप ऑफ मैट्रिक्स, फ्लूइड जेली लाइक थिंग कॉल्ड मैट्रिक्स. तो यहाँ पर इट्स अ साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ये हमको याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स कैसा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज सेमी, कैसा होता है, ऑटोनॉमस। क्यों कहते हैं इसको सेमी ऑटोनॉमस? मैम क्योंकि खुद से काम करता है. हाँ, बट सारे नहीं, इसलिए सेमी वर्ड यूज हो रखा है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज सेमी ऑटोनॉमस। मैम व्हाट डू यू थिंक भगवान ने हमें बनाया या बनाया कैसा मैम? नहीं, हमें भगवान ने नहीं बनाया है। हम कैसे बने, सम लाइक आप कह सकते हो हाइड्रोजन वाज अवेलेबल, ऑक्सीजन बना, ठीक है, टाइम के साथ मिनरल्स बने, एटम्स वगैरह, मॉलिक्यूल्स हुए, मॉलिक्यूल से सेल बने, जिसकी वजह से हम बने। तो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना है, यूं याद रखो। तो सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल इज अ सेमी बिकॉज it have its own DNA, मैम तो RNA। बेसिक मैम लाइक अभी भी मुझे मैथ्स वाले का रिजल्ट नहीं मिला, तो मैं सर को भी कॉल करूँ या कैसे? नहीं 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 नहीं, डोंट डू दैट। देखो, रिजल्ट तब देंगे हम पहले, मैं भी आपको रिजल्ट भेज सकती थी, इसलिए नहीं भेजा। पहले हमेशा क्या रहेगा पैटर्न देवाशीष, अगर सैटरडे को या फिर संडे को टेस्ट होता है तो मंडे की क्लास में और ट्यूसडे की क्लास में डिस्कशन होगा। तो मैंने आज करवाया, सर कल डिस्कस करवाएंगे, क्योंकि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो, आंसर में कोई दिक्कत हो, देन वी विल पब्लिश द रिजल्ट। आपको कल रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। यू डोंट नीड टू कॉल एनीवन। राइट मैम. तो पॉइंट इज, इसके पास खुद का डीएनए होता है, खुद का आरएनए होता है, खुद के राइबोसोम्स होते हैं, जिसकी वजह से डीएनए होने की वजह से उस डीएनए की कॉपी बना सकता है। रेप्लिकेट करने का मतलब देवाशीष क्या कर सकता है, डीएनए की जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बना सकता है। और ये राइबोसोम्स होने की वजह से खुद के प्रोटीन्स बना सकता है। प्रोटीन्स कैसे काम करेंगे, यहाँ पे एंजाइम्स की तरह भी काम कर सकते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करना हो तो इनको। चलो अब बुक ओपन करो और रीड करना। ए से बस मैम एक बार नोट कर. मैं यहाँ पे नोट डाल देती हूँ, है ना।
हाँ मैम हो गया राइट तो बैक टू द टॉपिक हाँ of various shapes but usually रुको रुको sausage रुको रुको like रुको 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 sausage रेस्पिरेटरी, ये लास्ट लाइन लिखो तो फिर रीड करना। अच्छा लिखनी ये प्रोटीन किसकी तरह काम करते हैं? रेस्पिरेटरी एंजाइम की तरह। मैम एक बार थोड़ा साइड हो सकते excuse me ma'am can you दिख get a रहा bit है? aside हाँ प्रोटीन has respiratory enzyme right yes ma'am Okay, now read. of various shapes but usually sausage like double walled inner wall thrown into folds twisted they have their own DNA containing several genes also contain their own ribosomes था अच्छा मान सो बेसिकली जो ऑटोसोम्स होते हैं इनके वो राइबोसोम्स ही होता है नहीं 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 ओ इधर देखो, सेमी का मतलब हाफ, ऑटोनॉमस का मतलब फंक्शनिंग। देवाशीष, तो ये खुद मैम की आई एम बहुत नॉट सारी टॉकिंग अबाउट फंक्शनिंग। सेमी ऑटोनोमस मैम वो मुझे समझ आ गया बट द थिंग इज दे हैव देयर ओन राइबोसोम्स लिखा है यहाँ पे हाँ, तो फिर आपने आगे मुझे क्या बोला? राइबोसोम इज सेम एज ऑटोसोम्स। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ये क्या बोला था? तभी तो मैंने समझाया। ऑटोनॉमस का मतलब क्या? सेल्फ वर्किंग। सो अपना खुद का क्या क्या वर्क कर सकते हैं देवाशीष? डीएनए को रेप्लिकेट करना, राइबोसोम्स की मदद से प्रोटीन बनाना, वो प्रोटीन जो आगे चल के एंजाइम्स की तरह काम कर सकते हैं। तो ऑटोनॉमस का मतलब मैम ऑटोमेटिक तो वर्किंग। बेसिकली स्टूडेंट जैसा ही है बेसिकली जो उसको होमवर्क करना होता है वो कर देता है उससे ज्यादा कुछ नहीं करता करेक्ट। अच्छी बात बताओ, ईआर क्या खुद से प्रोटीन बना सकता है जब तक उसको न्यूक्लियस ना बोले? देखो, हम अब सुनो, इसको सिंपली यूं समझो कि सेल की सारी एक्टिविटीज को, कहने का मतलब कौन से स्ट्रक्चर को क्या काम करना है, ये सब कुछ चीजें कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। समझ में आया? पर एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा क्लोरोप्लास्ट, इनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल ये खुद भी कर सकते हैं, बट सारी एक्टिविटीज को नहीं। तो इनको अपने कंट्रोल के लिए जो मशीनरी चाहिए इनके पास अवेलेबल है, पर पूरी मशीनरी नहीं है। बाकी की मदद किससे मिलेगी? न्यूक्लियर जीन्स से मिलेगी। मतलब वो जीन्स जो न्यूक्लियस से कंट्रोल करेगी इनकी एक्टिविटी को। समझ में आया देवाशीष? व्हाई दे आर सेमी यस ऑटोनॉमस, व्हाई नॉट फुल्ली ऑटोमेटिक? तो ऐसी मशीन नहीं है जो खुद से चलना चालू कर देगी। फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं है वो सुना होगा ना, फुल्ली ऑटोमेटिक, जैसे कि मशीन आपका वॉशिंग मशीन। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन कैसी होती है? फुल्ली ऑटोमेटिक होती है। सिर्फ हमने क्लिक मैम किया। उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है ऑटोमेटिक वाली मशीन में पहले क्या? व्हाइट कपड़े अलग कलर कपड़े अलग फिर उसको एक बाल्टी में डालो फिर ऐसे ठूसो मैम बहुत काम होता है मैम एक्चुअली ऑटोमेटिक को जेन्युइनली तो कुछ सच नहीं है है ये, बट स्टिल फुल्ली मैम ऑटोमेटिक का मैम मतलब। लाइक उसमें सेटिंग्स भी खुद से डालनी पड़ती है हाँ ऑटोमेटिक कहाँ की हाँ, ऑटोमेटिक तो मैम फुल्ली ऑटोमेटिक का मतलब यही है कि आप सेटिंग सेट कर दोगे, वो खुद से काम कर देगी। ठीक है, बट अगर मैं यही बात कहूं देवाशीष कार के लिए, तो कार फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं होती है, कार मैम सेमी मैम ऑटोमेटिक कार होती है। ऑटोमेटिक होती है मैम अच्छा, मैम ड्राइवर रख लो ऑटोमेटिक कार बात खत्म ओके, यहाँ कोई ड्राइवर नहीं है। पहली बात तो ये खुद का ड्राइवर है, बट ये वो ड्राइवर है जो खुद से कार चला के कहीं जा सकता है देवाशीष, बट बिना अपने चीफ की परमिशन लिए बिना नहीं। तो चीफ कौन रहेगा? न्यूक्लियस रहेगा, बट न्यूक्लियस की इनको सिर्फ परमिशन चाहिए, कार ये खुद रन कर सकते हैं। आया समझ? चलो फंक्शन पढ़ो। हाँ राइट मैम सो release of energy from pyruvic acid produced inside the plasm in the पहली लाइन form समझ में आई? of पहली लाइन समझ में आई? सिर्फ रीड state मत of करो। cell हाँ so basically जब ये ATPs मैम एक सेकेंड मैम तो बेसिकली जो ये ATPs वगैरह है तो बेसिकली अगर ये ब्रेक डाउन हो गई तो मतलब लाइक सेल को उसकी एनर्जी मिल गई और फिर सेल उसको कई मैम सेल एनर्जी लाइक फिर माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी को खुद के लिए भी रखता है इधर देखो, सुनो, ये है हमारा एक सेल। इस सेल राइट में एंटर हुआ ग्लूकोज, ये मैं पहले भी बता चुकी हूं आपको। क्या एंटर हुआ सेल में? ग्लूकोज। ग्लूकोज को ब्रेक किया गया किसमें देवाशीष? pyruvic acid पायरुविक एसिड में। कहां पर ब्रेक हुआ? ये जगह बताओ।
माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में मैम सेल के अंदर शायद से। कहाँ? जगह पूछ रही हूँ, सेल के अंदर कहाँ? ग्लूकोज से मैम पायरिक एसिड में तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही हुआ होगा। ये नोट्स में भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा, मैंने कहाँ एक्सप्लेन किया था आपको ये पॉइंट पहले? कहाँ किया था, कहाँ किया था? एक दिन तो किया था, कुछ तो पढ़ा रही थी जब एक्सप्लेन किया था पायरुविक एसिड वाला। जरा देखो, कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा। कहाँ होता है ये? हाँ, साइटोप्लाज्म में देखो, साइटोप्लाज्म में खोलो। ये रहा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सेमी में कहीं फ्लूइड है ये लिखा हुआ सब्सटेंस गैसेस पायरुविक एसिड? लिक्विड। मैम साइटोसोल लिखा है यहाँ पे, पायरुविक एसिड तो दिख नहीं रहा मुझे। ये इधर देखो, इसको अब बना ही लेना आज। ये ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का कन्वर्जन कहाँ पर देखने को मिलता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्मा में देखने को मिलता है। ठीक हाँ। है, हाँ, ये ब्रेक हाँ हो बट जाएगा यहाँ पे। साइटोप्लाज्म में मैम साइटोप्लाज्म कैसे करती है ब्रेक इतना डाउन? सरप्राइज हो रहे हो, उस दिन तो सरप्राइज नहीं हुए थे जब मैंने पहले ही बताया था तो? मैम क्योंकि मुझे ये क्या हुआ देबाशीष, सुनो, मेरे पास कोई चीज आई, ठीक है, मैंने उसको अपने हिसाब से ब्रेक कर दिया, अब वो चीज आपके पास गई, राइट। तो आपके पास गई तो वो ऑलरेडी दो हिस्सों में ब्रेक्ड है, तो आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा। तो इधर देखो, ये जो पायरुविक एसिड बना ना, अब ये पायरुविक एसिड कहाँ एंटर करेगा? कहाँ एंटर करेगा पायरुविक एसिड? माइटोकॉन्ड्रिया। करेक्ट। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है वो कौन होता है? वो पायरुविक एसिड होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया में ये पायरुविक एसिड एंटर करेगी तो यहां पर आगे का रिएक्शन चलेगा, मतलब इसको किस में तोड़ा जाएगा? क्या बनाया जाएगा? क्या बनाया जाएगा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर? एटीपी मैम। अब समझ में आया, इसको लिखो अब भी। डायग्राम बताऊंगा हाँ, एज इट इज सेम डिक्टो। मैम? आर्टिस्टिक नहीं हूँ ऐसे में बट आई ट्राई। लिख ही नहीं पा रही इसमें। इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज पूछना, ओके? हाँ। ये इधर इधर वापस एक बार, पायरुविक एसिड को इसमें ब्रेक किया गया, किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ मैम माइटोकॉन्ड्रिया में। साइटोप्लाज्म। हाँ हाँ हाँ, वापस क्वेश्चन रीड करो। Pyruvic acid will enter the mitochondria and it will be broken down to form the energy in the presence of In the presence of ATP, sorry, in the ma'am mitochondria तो mitochondria ना? in the presence of इधर Ma'am repeat इधर please. इधर इधर is broken down to form the energy in the presence of O2. oxygen. So this process require oxygen and for the oxygen requirement only किसकी प्रेजेंस में ऑक्सीजन बन, किसकी प्रेजेंस में हुआ ये कन्वर्जन? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, हाँ, मार्किंग नहीं भूलना है। माइटोकॉन्ड्रिया में बना, किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोला हमने देवाशीष? नोन एज एरोबिक Aerobic रेस्पिरेशन। तो वो रेस्पिरेशन, वो फूड का ब्रेकडाउन टू फॉर्म द एनर्जी, जहां पर ऑक्सीजन लगता है उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। जहां ऑक्सीजन नहीं लगता उसको क्या बोलते हैं? उसे एनारोबिक। anaerobic ठीक है, respiration. यस। सो नोट दिस डाउन एंड इट्स इंपॉर्टेंट, और अब नहीं भूलना है इसको। क्लियर हुआ? तो आप जब बुक रीड करते हो ना तो उसको रीड नहीं yes. करना, उसको समझना है। और ये हो कहाँ रहा है सब कुछ, ये बताओ, पूरा प्रोसेस कहाँ हो रहा है? मैम सेल के अंदर है। वेरी गुड, सेल के बिल्कुल अंदर। सही है, सेल के अंदर। तो सेल के अंदर हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या वर्ड बोल सकते हैं एक और देबाशीष? Cellular respiration. परफेक्टली करेक्ट। आगे आप समझ में? मैम वैसे respiration को लैटिन में क्या कहता है? लैटिन पे ये खुद ही लैटिन और ग्रीक वर्ड से आया है। रेस्पायर, रेस्पायर करने का मतलब होता है टू ब्रेक समथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन व्हिच रिक्वायर एन ऑक्सीजन, दैट इज द रेस्पिरेशन। Right. हाँ। नाउ रीड इट तो अगेन। हो गया। Release of energy from pyruvic acid produced in cytoplasm in the form of ATP, state of cellular aerobic respiration, and stores energy. Synthesis of respiratory enzymes. Yes. Now any doubt in these words? Any No, sentence ma'am. doubt? Do let me know.
Ma'am, respiratory enzymes in like as in like you know these one example. I told you ना. अब ये जो प्रोटीन्स है वो रेस्पिरेटरी एंजाइम की तरह काम कर रही है. आप मुझसे पूछोगे कि मैम ये कहाँ काम कर रही है. सो पॉइंट इज ये प्रोसेस देबाशीष, पायरुवेक एसिड को जब आप कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक कर रहे हो तो इसको ऑक्सीजन लग रही है. ऑक्सीजन के साथ साथ इस प्रोसेस को क्या चाहिए, एंजाइमेटिक सपोर्ट चाहिए. और उन्हीं एंजाइम्स को हम क्या नाम देंगे देबाशीष? Ma'am, respiratory enzymes. Correct. So this process require two things: oxygen plus respiratory enzymes. Okay. Yes. So we are done with mitochondria. Okay. Next we'll start with plastids. Then हम DPP सॉल्व कर डिस्कस करेंगे ना, तब आपको क्लियर हो जाएगा. ओके. सो आज के लिए यू नीड टू सॉल्व बोथ 4th and 5th DPP. अगर अभी तक नहीं की है तो, कर ली है तो एक बार फिर से चेक कर लेना. देन we will discuss that. तो next Wednesday को there will be discussion of 4th and 5th DPP. ओके. आपका 5 DPP तक कंप्लीट हो जाएगा ना, मेरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा तब तक. देन आई विल गिव यू दी DPPs. मैं और DPPs दूंगी आपको बाय फ्राइडे, जो पूरा चैप्टर क्या होगा. ओके. Excuse me, ma'am, मतलब मुझे आपको ये भेजने की तो जरूरत ही नहीं है ना WhatsApp पे नहीं PDF बना मत के. भेजो, क्योंकि हम क्लास में डिस्कस करते हैं ना. ओके. जस्ट कीप अ रिकॉर्ड कि यू नीड Ma'am? टू इन्फॉर्म. हेलो मैम. Ma'am, hello, ma'am. Yeah, good afternoon. Good Sorry to afternoon. disturb you. No, Ma'am, बोलिए. only your subject or other subject also? नो आई एम टॉकिंग अबाउट माई मैम. आप बाकी अपलोड कर सकते हो. ओके. नो प्रॉब्लम. ओपन हो जाता है. मैं इसलिए Yeah, ma'am. हाँ मैम, मैं सिर्फ अपने सब्जेक्ट की बोल रही थी, इसलिए क्योंकि मेरा थ्योरेटिकल रहता है. मुझे वो टॉपिक क्या है देबाशीष को क्लास में एक्सप्लेन भी करना होता है. तो मेरे साथ क्या रहता है ना, मैं इसलिए अपलोड नहीं करवाती DPP. देन वो थोड़ा चेकिंग जैसा हो जाएगा. अभी के लिए मैं ऐसा रखती हूँ कि मैं जब क्लास में डिस्कस करवाती हूँ ना, आई लेट देबाशीष एक्सप्लेन मी दैट पॉइंट कि आपने इसका आंसर क्या दिया ठीक है है. एंड क्यों दिया है. सो दोनों काम हो जाते हैं. अगर मैं Okay. सिर्फ चेक करूंगी तो मेरा दूसरा काम नहीं हो पाएगा कि आंसर क्यों दिया. इसीलिए आई वांट अ रीजन फॉर द Okay. आंसर. अच्छा मैम, आपने ना एक WhatsApp ग्रुप पे लिखा था ना, explain one और हाँ, in आई 2 एक्सप्लेन line हिम टुडे मैम. मैंने test. एक्सप्लेन कर दिया देबाशीष को कि कैसे आंसर चाहिए. देबाशीष क्लियर हो गया ना वो? Basically वो जो है हाँ ma'am. अच्छा, बात नहीं करना. हाँ. Thank you, ma'am. या ओके. चलो फिर स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन ना. सो द नेक्स्ट वन इज वी हैव, कौन सा है? Plastids, हाँ, chloroplasts. दैट इज, यू आर ऑलवेज कंफ्यूज प्लास्टिड और उसके अंदर. मैं वही कंफ्यूजन सॉल्व करूंगी आज. तो विल स्टार्ट विद प्लास्टिड्स. ओके. वेयर दे आर फाउंड? Cell के अंदर में भी. फाउंड इन, हाँ वो सब कुछ तो सेल में ही मिल रहा है ना, बट कौन से ऑर्गेनिजम्स में? फाउंड इन Plant cells. आई एम नॉट राइटिंग प्लांट सेल. Why? क्योंकि जो भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, उनमें ये मिलता है. जैसे याद है ना, कुछ दिन पहले आपको एल्गी का एग्जांपल दी थी, है ना. वॉल्वॉक्स का बारे में हमने बात किया था, स्पाइरोगायरा की बात की थी. इवन वी आर डिस्कस्ड अबाउट यूग्लिना. दे आल्सो हैव सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. ओके. आप मोस्टली लिख सकते हो, मोस्टली इन कौन से सेल्स? Plant प्लांट cells. सेल्स, क्योंकि दे आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर. अब हम प्लास्टिड के सबसे पहले आप डालोगे टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स. यू नो कितने टाइप्स के होते हैं? Ma'am, I guess 3 टाइप के होते हैं. हाँ, कौन कौन से? पहले कभी पढ़ा है? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और एक और होता है वो हाँ याद नहीं करेक्ट. मुझे. किसके बेसिस पर होते हैं देबाशीष ये 3 डिफरेंट टाइप्स? Ma'am, functions. फंक्शन नहीं, on the Ma'am, color change. basis of pigment they have. Color. हाँ. There's a difference between pigment and color. Pigment give the Ma'am, color. हाँ. Ma'am, so technically racism, but in terms of cell. हाँ. So on the basis of the pigments they have. तो 3 तरह के होते हैं. One is Melanin. chloroplast. Which color is it? Chloro green. Chloroplast because it contains, क्या होता है इसके Green पास pigment. देबाशीष? Chlorophyll. It contains chlorophyll. Chlorophyll. क्लोरोफिल होने की वजह से कलर कैसा आया? Green. ग्रीन कलर प्लास्टिड होता है ये. फंक्शन
मैम टू फोटोसिंथेसाइज। यस, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सो इसको ऐसे रीड करो, क्लोरोप्लास्ट इज द प्लास्टिड। देवाशीष पहले इधर देखो, फिर रीड आउट, नीट फिर लिखना, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट हैव द पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल विच गिव्स ग्रीन कलर टू दिस प्लास्टिड। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन बताओ। यस मैम। नेक्स्ट वन, यस मैम। नेक्स्ट वन, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। कलर, पहले पिगमेंट्स की बात करते हैं। मैम आई इसके गेस पास पिगमेंट होते मल्टी हैं ना, कलर लाइक ग्रीन और येलो। कैरोटेनॉइड्स हो गए, सॉरी रेड और येलो, ये रेड और येलो, रेड और ज़ेंथोफिल हो गया, येलो। ये येलोइश कलर देता है। तो गिव कलर, अब इसमें पता क्या लिखोगे? कैरेट। गिव कलर अदर देन ग्रीन। कभी देखा है आपने फ्रूट्स का कलर ग्रीन? किसी फ्रूट का कलर ग्रीन? मैम स्टार्टिंग में होता है जैसे लाइक ग्रीन एप्पल। हाँ ग्रीन एप्पल। हाँ, ओके, बट बाय द टाइम दे स्टार्ट चेंजिंग देयर कलर, इवन द ग्रीन चिलीज आर देयर ना, उनका कलर भी टाइम के साथ रेड हो जाता है। इसका मतलब ये इंटरचेंजेबल है। क्लोरोप्लास्ट कैन गेट कन्वर्टेड टू क्रोमोप्लास्ट। सो गिव कलर अदर देन ग्रीन, ग्रीन के अलावा कलर देने वाला। किसको कलर तो देता है ये? मैम फ्लावर्स में होता ही है। हाँ, वेरी गुड, कलर टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। आपने कभी देखा नहीं होगा कोई ग्रीन कलर का फ्लावर, देखा है तो मैम को बताओ। मैम एक वो है छोटे, रुक जाओ, Your मैं name ग्रीन will be कलर written in Guinness Books of World Record if there is a flower having green color. Any flower having green color? No, there is not. Not a single flower having a green color, Debashish. Why? क्योंकि flowers have only and only chromoplast in them. मैम टुमारो आई विल मेक अ ग्रीन कलर वाला रोज, ओके? कैसे? In your मैं copy बना दूंगा मैम, यूज or in नो dreams? नो मैम, यू विल सी मैम। Okay, last one. Last one is लूकोप्लास्ट आई leucoplast. मीन What is the color of this? वाइट। No color, and white is actually a color itself, Debashish. No color. Color depends upon जो materials में store होगा। ये काम क्या करता है? मैम ये Storage नहीं of, किसका storage? मैम, स्टार्च का आई गेस। Lipids, हाँ, starch लिपिड्स। and proteins. Okay, good. हमें डिटेल में एक ही पढ़ना है, क्लोरोप्लास्ट। शांतोफिल, राइट? मैम वैसे अगर 10th में कोई लाइक ओलंपियाड होता है कोई? ओलंपियाड 10th लेवल पर स्कूल में एक बार चेक कर सकते हो, बिकॉज स्कूल टू स्कूल थिंग्स वेरी, हाँ, बट ऐसे जनरल तो नहीं है 10th क्लास पर। ऐसे मैंने कहा था ना आईबीओ होता है, तो वो 10 to 11 मूविंग स्टूडेंट्स देते हैं। लूकोप्लास्ट। ट्रांसपेरेंट एंड स्टोरेज। मैम लिपिड्स फैट्स नहीं होते टेक्निकली ट्रांसपोर्ट? हाँ हाँ हाँ, हमने पहले लिखा है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, स्टार्च क्या होता है देवाशीष? इट्स अ कार्बोहाइड्रेट। डन नोटेड? मैम। यस मैम। ओके, चलो, सो लेट्स गेट टू द डिटेल ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड? मैम सिंगल। डबल। अब भी थोड़ी देर पहले क्लोरो, बताया था ना, अच्छा हाँ हाँ हाँ। डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। स्ट्रक्चर वाइज बात की जाए, सो अगेन वी नीड टू ड्रॉ द डायग्राम। इधर डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, ये हो जाएगी आउटर मेम्ब्रेन, एंड देन व्हेन अनदर वन, अंदर वाली जो होती है वो हमारी हो जाएगी इनर मेम्ब्रेन।
अब यहाँ पर अंदर छोटे छोटे से कॉइन जैसे स्टैक्स मिलेंगे, पता है इन्हें क्या कहते हैं? नो मैम। और ये स्टैक्स आपस में इंटरकनेक्टेड भी मिलते हैं। सिंगल कॉइन को इधर देखो, मैं लिख रही हूं, है ना? सिंगल कॉइन को, सिंगल स्ट्रक्चर को थाइलाकॉइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? थाइलाकॉइड। हाइलाकॉइड। स्टैक्स को क्या बोलते हैं? स्टैक्स को बोला जाता है, आइदर वी राइट एज ग्राना और सारों को वी कैन से ऑल्सो ग्रानम। ग्राना या ग्रानम बोला जाता है। इंटरकनेक्टेड होते हैं ना, इन इंटरकनेक्शंस को बोला जाता है स्ट्रोमा लेमेले। लेमेले वर्ड इज यूटिलाइज्ड फॉर द कनेक्शंस, ठीक है ना? इंटरकनेक्शंस को बोलते हैं। और यहाँ के भी जो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, इस फ्लूइड मैट्रिक्स को स्ट्रोमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है देवाशीष? जैसे अपन ने अभी वहां बोला था ना माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स होता है, वैसे यहाँ पे स्ट्रोमा होता है, ठीक है? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ। अब यहाँ पर भी बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ पर भी आप डीएनए मार्क कर सकते हो, यहाँ पर आप राइबोसोम्स मार्क कर सकते हो, यहाँ पर आप आरएनए और बाकी चीजें मार्क कर सकते हो। सो मेनी थिंग्स आर फाउंड हियर। तो ये भी नेचर में कैसा सेमी ऑटोनॉमस होगा? कंसिस्ट ऑफ thylakoids made by consist of thylakoids which forms stack known as grana और ग्रानम बोलते हैं। नोटेड? Now I'm noting the cycloid वाला thing. हाँ, लिख लो। ना। लिखा? हाँ। ओके, अभी ये थाइलाकॉइड्स होते हैं, तो इसमें हम लिखेंगे थाइलाकॉइड्स कंटेन्स क्लोरोफिल पिगमेंट विच ट्रैप्स। क्या करता है क्लोरोफिल? लाइट ट्रैप करता है। हाँ, विच ट्रैप्स सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये थाइलाकॉइड्स है ना देवाशीष? जहां पर क्या मिलता है? जहां पे क्लोरोफिल मिलता है, जिसका काम क्या है? सनलाइट को ट्रैप करने का। ओके, मैम वापस खाने को डिसाइड। स्ट्रैप्स। मुझे ये यूज किया है। हाँ। डन मैम। ओके, क्लियर हुआ ये पॉइंट कि थाइलाकॉइड्स क्या होता है? थाइलाकॉइड्स के पास दे हैव द क्लोरोफिल एंड क्लोरोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द सनलाइट एंड सनलाइट किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, मैं रिएक्शन भी लिखकर दिखाऊंगी। देन नेक्स्ट वी हैव द स्ट्रोमा। स्ट्रोमा
which हाँ मैंने स्टोमाटा सुना था. हाँ स्टोमेटा आर दी पोर्स ना जो लीव्स में अवेलेबल होते हैं. Yes. Stroma which contains enzymes for CO2 fixation. CO2 fixation का मतलब देबाशीष conversion of the carbon dioxide to carbohydrate, वो CO2 fixation होता है. ठीक है. Yes. Stroma also contains क्या होता है स्ट्रोमा के पास? डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम्स. तो इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट भी कैसा हो गया? सेमी ऑटोनॉमस. Yes. For which chloroplast is also known as सेमी ऑटोनॉमस. तो आपसे ऑप्शन में बोला, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गन्स आर ऑटोनॉमस, सेमी ऑटोनॉमस. तो आंसर क्या लिखोगे? Yes, ma'am. आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गन्स आर सेमी ऑटोनॉमस. तो आंसर क्या आएगा? Chloroplast. कौन कौन से सेल ऑर्गनल सेमी ऑटोनॉमस होते हैं? Ma'am, mitochondria. और दूसरा? So, chloroplast. Yes. So you need to check these two in the option. Okay? है ना? ना मतलब आप ये दूसरे टेस्ट में एक क्वेश्चन दोगे. ऐसा तो मैंने बोला नहीं. हो भी सकता है. अब तो मैं पक्का नहीं दूंगी. चलो. So have you written this? Yes. अब रीड करो मेरे लिए. Open your book and read that what is written. आप क्लोरोप्लास्ट लिखे नहीं है वैसे तो. प्लास्टिड लिखा हुआ होगा ना भाई. हाँ वो लिखा है. हाँ. और several kinds most common ones are chloroplast containing the green धीरे धीरे pigment. धीरे धीरे समझ कर, और डाउट हो तो पूछना. वो रीडिंग मैं भी कर सकती हूँ ना, आपसे क्यों करवाती हूँ? ताकि आप समझ कर बोलो. और स्ट्रेट बैठो, बिल्कुल स्ट्रेट. Right, ma'am. स्ट्रेट बैठो. मैं सो जाऊं, मैं टेबल पे बैठ जाऊं, दिखता है ऐसा? मैं रेगुलर क्लास लेती हूँ, कंटिन्यूस. आई जस्ट गेट 5 or 10 minutes ब्रेक इन ईच एंड एवरी क्लास. और आप थोड़ा देखो, हमारा पोस्चर मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है. तो मेंटेन योर पोस्चर, सिट स्ट्रेट. अगर लगे ना बीच में कि यॉर्निंग हो रही है, नींद आ रही है, कुछ है, तो जस्ट गो एंड स्प्रिट सम वाटर ऑन योर फेस. बस काफी हो जाएगा. ओके हाँ मैं ठंडी है मैम, बीमार भी हो सकता हूँ. ओके चलो रीड करो. Of several kinds, most common ones are chloroplast containing the green pigment chlorophyll, double membrane proteinaceous Which matrix. matrix they are Ma'am, talking about? Proteinaceous matrix. इधर proteinaceous matrix stroma. Proteinaceous means protein which will be acting as the enzymes. Read. Debashish. Debashish. मुझे कैसे पता लगा कि अपना नेटवर्क गया है कि उसका? हैंग हो गया उसका. हो रहा है कनेक्ट हो रहा है उसके इधर से हो रहा है. हाँ, am I audible? yes ma'am. इंटरनेट इशू है शायद ना, आज थोड़ा सा ब्रेक शो हो रहा है. चलो लास्ट पॉइंट रीड करो. Right. अच्छा हाँ. Disc-like structure called thylakoids contain chlorophyll. Thylakoids which are present in the contain the chlorophyll. Are you getting that point? डायग्राम में मार्क किया था कि डिस्क शेप के स्ट्रक्चर्स में क्या अवेलेबल Yes, होता है? ma'am. क्लोरोफिल होता है. चलो उधर रीड करो. Chloroplast, green in color, traps solar energy for photosynthesis, contain the pigment chlorophyll. Leucoplast, colorless, though starch, have no pigment.
Chromoplast. Chromoplasts, variously colored, impart colors to flowers and fruits, contain the pigments xanthophyll, yellow colored pigment, Keratin. carotene, orange red pigment. They also indirectly help in pollination by attacking different pollinators, which then help disperse seeds. Yes. Done. कोई doubt? No, ma'am. पूछ लो अगर हो तो एक बार रीड कर लो जो लिखवाया आज मैंने. ओके ये टॉपिक डन हो गया हमारा. सो हमारे पास जो बच्चा है इसमें पढ़ने के लिए दैट इज द लास्ट टॉपिक, वो है न्यूक्लियस. तो इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के साथ मैं कंटिन्यू करूंगी विद क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड क्रोमैटिन. ठीक है, क्योंकि वो Okay. न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर है. एंड देन विल बी टॉकिंग अबाउट सेल डिवीजन. दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक. बड़ा एंजॉय करोगे, बड़ा अच्छा लगता है वो टॉपिक पढ़ना. रीड करना है अभी, अभी टाइम है, वी स्टिल हैव 5 मिनट्स. ओके, आई विल गिव यू द ब्रेक, डोंट वरी. एक बार देख लो बस. मोहम्मद एक सेकंड, मेरे एक और फिर से था. तो ये नेजल स्प्रे अगेन है, इसके साथ एक और था. तो राइट, तो मैं पहले वो डालूंगा, उसके बाद मैं इसको डालूंगा, राइट? किसको? तो मैं आपको दिखाता हूँ, दूसरा हाँ. वाला ही है. फिर तो मैम तो दूसरा वाला ही है, ठीक है. हाँ, नेजल इसको बहुत स्प्रे. सैटिस्फाइंग ऐसे ऐसे करके स्पाइडरमैन वाला लेके करता है. हाँ हाँ. तो मैम पहले मैं इसको डालूंगा या इसको डालूंगा? बिकॉज मुझे नहीं पता लग रहा कि उनका सोल्यूशन क्या है, उनमें क्या है, तो मैं कैसे बताऊंगी आपको? डॉक्टर मस्ट हैव टोल्ड यू ना व्हिच वन. Isotonic nasal spray, soul spray, gamma radiated daily nasal hygiene, I new think this Bose one. technology. Then this one will go first. This As one, I. no? Doctor बस must have prescribed you. I'm not a doctor. I'm just a teacher. ma'am, but you know, bio teacher, so they know So that everything. means if I'm a bio teacher, that means I should know everything, each and everything about the body. Is that so? Ma'am, you No, that's train not people to necessary. become doctor. That's not go Ma'am. compulsory with me. Okay. Okay. So go. Split some water on your face. Next will be your physics class, and you can't take risk with the Physics physics class is class. fun, ma'am. It's quite interesting. So it's that means bio is not interesting. Say. Ma'am, bio is like, you know, rectification आता है तो कभी कभी. Okay. Chalo. So let's get in the next class. Bye. Take care. Bye, ma'am.